योगः कर्मसु कौशलम्। नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते एवरीवन। आई एम डॉक्टर विवेक सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, श्री मुरली मनोहर टाउन पीजी कॉलेज पलिया, and at the same time I am in charge HOD Department of Physical Education, Jannaik Chandrasekhar Vishwavidyalaya Paliya. It is honor for me to be here to be part of this course. Now I put my sincere thanks to UGC Human Resource Development Center of Gujarat University for providing me such a wonderful chance to share my knowledge on the topic that is I'm going to talk today, or that is my presentation, that is science of breathing and pranayama. So now I'm going to share my presentation PPT on the screen. This is my topic on which I'm going to speak, that is the science of breathing and pranayama. So my whole presentation is divided into two parts. First, the science of breathing means what are the different methods of breathing and what is the science behind breathing, means what is the physiology and psychology of breathing. And then after, the second part of my presentation is pranayama. As we know, pranayama we perform with the mean of our breathing. So that is why in the first part we try to understand about the breath and its impact on our personality or all different dimensions of our personality. And in the second part, we try to explore about what is the yogic approach or yogic science behind the pranayama. So that is the summary of my presentation, or which we are going to cover in next 60 or 70 or 80 minutes. So I start my presentation with a question that, do we know what is the right way of breathing? क्या हम सब जानते हैं सही तरीके से ब्रीदिंग कैसे की जाती है या ली जाती है? So I think in the maximum cases answer is no, or we are at the stage of dilemma. We confuse that maybe whatever the way I take a breath, is it right or is it wrong? We're not sure about that. हम उसके बारे में sure नहीं है, because when we are child, we didn't get, at that time we didn't get such type of education regarding breathing. हम जब बच्चे थे तो हमें किसी ने नहीं बताया कि this is the right way of breathing and this is a wrong way of breathing, or this is a not right way of breathing. So that is why we are all confused. During childhood हमको basic चीजें सिखाई जाती है, but this is a one major part which is not there, जो normally नहीं होता है. But see, answer is here. See, at the time of birth, when we came on this earth, that time we know the right way of breathing. Means Mother Nature ने already हमें सिखा के भेजा होता है what is the right way of breathing. Normally we know about that. That is a diaphragmatic breathing. और जो छोटे बच्चे होते हैं वो diaphragmatic breathing करते हैं because they know what is the right way of breathing. But see what happened when we grow up. हम जैसे से बड़े होते हैं, there is a lot of stressor put stress on us. बहुत सारे stressors हैं, external stressors हैं, world के stressors हैं जो हमारी body पे stress डालते हैं. Due to that stressors, our internal physiology of the body get disturbed. Means physiology, and at the same time our psychology also disturbed. And due to that, what happened? Our body not maintain their normal balance, or we can say homeostasis level of the body. And due to that, what happened? Gradually and slowly we start practicing wrong method of breathing. Means there is a gradually and slowly adaptation take place in our body, and the response is that we take a wrong method of breathing. One of that, and breathing is a core. Other changes also there. बहुत सारे changes भी होते हैं, but that is the main change about the breathing. अब होता क्या है कि जब हम बड़े होते हैं, when we are at the age of teenage cross करके young होते हैं, that time what happen? हम ऐसा नहीं कि 24 hours गलत breathing करते हैं. Out of 24 hours, it may be around 12 hours we take a right way of breathing and 12 hours we not take a right way of breathing. But as compared child, वो 24 hours में से almost 24 hours they take a right way of breathing. But और अगर हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में जाते हैं तो ये हो सकता है कि आउट ऑफ 24 आवर इट मे बी वी टेक 20 आवर्स रॉन्ग मेथड ऑफ ब्रीथिंग.
और रॉन्ग मेथड ऑफ ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने से बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम कमिंग स्लाइड्स में देखेंगे। और 4 आवर हम नॉर्मल ब्रीदिंग लेते हैं। सो दैट इज द पार्ट विच वी must concern about that, the method of breathing. Now, importance of breathe, as we know, without food, maybe we may be survive for next 1 week or 10 days or 15 days. Without water, we may be survive for next 3 days, 4 days. It is all about the surrounding where we are. But what about the breathe? We cannot survive without breathing more than 4 to 5 minutes. After that, our body is not able, especially our brain cells are not able to survive. They are going to die. And if our brain cells are die, we are also going to die. Now, the next question comes that why do we breathe? Means why we need oxygen and CO2. So here we more emphasize on the oxygen. There's also crucial role of CO2 in our body, but here we more emphasize on O2 now. So this is a one diagram through which we try to understand. See, this is a simple glucose molecule. And it has the atom of carbon, hydrogen, oxygen in the ratio of 6:12:6. When this glucose molecule goes for the metabolic process, जब glucose का molecule metabolic process के लिए जाएगा और इसका जब breakdown होगा, उस समय ऑक्सीजन का बहुत crucial role होता है हमारी बॉडी में. See, especially when we talk about the aerobic metabolism और aerobic में हम जब Krebs cycle में जाते हैं, जब हमारा बॉडी में ग्लूकोज goes in हमारी बॉडी का जो प्रोसेस है वो हमारे Krebs cycle में जाते हैं, एंड देन Krebs cycle से क्या होता है, वहाँ पे ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है दैट इज ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होने के बाद उससे जो कार्बन एंड ऑक्सीजन है, जो ग्लूकोज के अंदर कार्बन से ऑक्सीजन के एटम्स हैं, वी ब्रीथ आउट, हम CO2 के माध्यम से उसको बाहर निकाल देते हैं, एंड देन आफ्टर उसमें से हमें बॉडी को ATP मिलता है. डायरेक्टली ATP नहीं मिलता है, उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. दैट एनर्जी हेल्प अस टू रिसाइकिल आवर ATPs. हमारी बॉडी में फिर क्या होता है, ATP को रिसाइकिल करते हैं, ATP से ATP बनता है. सेम वे में आके जब ये क्रैप साइकिल के बाद हाइड्रोजन आयंस होते हैं, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन को CO2 फॉर्म में तो ब्रीथ आउट कर दिया, लेकिन जो हाइड्रोजन आयन है that is goes or moves for the further level of chemical reaction that is known as the electron transport chain reaction के through, और वहाँ पे huge amount of energy generate होती है. That energy help us to again recycle or rebuild our ATPs. ATPs के बारे में जानते हैं, adenosine triphosphate हमारी बॉडी का फ्यूल है और करेंसी है, जिस या कह सकते हैं वो एक फ्यूल है जिसकी लैंग्वेज हमारी मसल्स जानती है. सो जब ये ATP का प्रोसेस पूरा हो जाता है, उसके बाद जो हाइड्रोजन आयन है दैट इज नॉट यूजफुल फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है. बट एट द सेम टाइम हमारी बॉडी का जो सेल है उसको डिस्टर्ब करना शुरू करता है. सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, जिसे हम कहते हैं, एसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ pH, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये डिस्टर्ब होना शुरू होता है. तो अगर ये डिस्टर्ब होगा तो सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट, जो सेल्स हैं उनके इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा. सो इन दैट कंडीशन ऑक्सीजन प्ले अ वेरी वाइटल रोल. ऑक्सीजन का बहुत बड़ा वाइटल रोल है. ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस के साथ बॉन्डिंग करके मेटाबॉलिक वाटर बना देता है. मींस जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन बचे थे केमिकल प्रोसेस के बाद, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद, तो उस हाइड्रोजन आयंस को के साथ मर्ज होके बॉन्डिंग करके वो मेटाबॉलिक वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर ऐसा नहीं होता तो दैट हाइड्रोजन आयन क्या करता, हमारी बॉडी का pH डिस्टर्ब करता और उससे हमारे सेल्स का इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता, या कह सकते हैं हमारे सेल्स एसिडिक इन नेचर हो जाते. सो दैट टाइम देयर इज अ वाइटल रोल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के और भी रोल है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल रोल ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज ब्रीदिंग? See, normally we know very well breathing is a physiological process through which our body exchange gases. हमारी बॉडी गैसेस को एक्सचेंज करती है, स्पेशली ऑक्सीजन एंड CO2. बट सी, द इम्पैक्ट ऑफ ब्रीदिंग इज बियॉन्ड दैट. ब्रीदिंग का जो इम्पैक्ट है हमारी बॉडी के डिफरेंट कह सकते हैं हमारी पर्सनालिटी के जो डिफरेंट डायमेंशन है, दे ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वे वी टेक ब्रीथ. Means our physical, physiological, psychological, or even spiritual, all the dimensions are influenced by the way we breathe. हम जैसे breathing करते हैं. Now next, what are the different phases and stages of breathing? Normally we know there are 2 stages of breathing.
First stage we breathe in, we inhale. In the second stage we exhale, breathe out करते हैं. That is the normally 2 stages of breathing. But naturally there are 3 stages of breathing. Means breathing has 3 stages when we are in the relaxed mode. इसमें क्या होता है? We take inhale, breathe in, and then after there is a micro level of pause, and then we exhale, breathe out, and again there is a micro level of pause. फिर से थोड़ा सा pause होता है. So that is why we normally our breathe, or we can say naturally our breathing has 3 phases: inhale, pause, exhalation. Or this is the core on which our core, or we can say this is the principle on which our whole pranayam science works. That is why in the pranayama we talk about there are 3 stages of pranayama, 3 what we can say way to extend our pran. That is purak, kumbhak, and rechak. Means inhalation, holding, and then exhalation. Now physiology of breathing, normally we know very well. When we means our rib cage extends, so the air comes in our rib cage, because we know very well that जो air pressure है, that is the air pressure inside the rib cage is lower than the atmospheric air pressure, so the air comes in. Same way जब rib cage normal stage पे आता है, then the atmospheric जो air pressure that is lower than the rib cage air pressure, so that is why we breathe out. इसको कंट्रोल कौन करता है? जो हमारा न्यूरो रेगुलेशन है रेस्पिरेशन का, वो थ्रू द ब्रेन होता है. ब्रेन में हमारा मेडुला ऑब्लिंगाटा और प्रोनस, दैट इज द 2 पार्ट्स which control the frequency and depth of breathing with the help of their chemoreceptors, जो उनके न्यूरॉन्स के थ्रू जो उनको मैसेज कन्वे होता है. chemoreceptors कहाँ होते हैं? हमारे कोस्टल मसल्स में होते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स में होते हैं. वहां से डायरेक्टली अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 से हमारे ब्रेन को मैसेज कन्वे होता है, थ्रू विच आवर बॉडी एक्सचेंज द अमाउंट, स्पीड or depth of our respiration or breathing. Now in our body there are 2 type of respiration. हमारी बॉडी 2 जगह पे गैसेस का एक्सचेंज करती है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मींस when the exchanging of gas take place at our lungs level or at our alveoli level. Or internal respiration means when the changing of gas take place at our cellular level. So external respiration में क्या होता है? हमने breathe को in किया, यहाँ पे हमारी बॉडी क्या करती है? ऑक्सीजन को इन करती है और CO2 को एक्सेल करती है. और ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है हमारे लंग्स में होता है. हमारे लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट रहता है दैट इज एल्वेलाई में होता है, और ये होता है ड्यू टू द पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है. इंटरनल रेस्पिरेशन उसके बाद लंग्स से जो हमारे ब्लड कैपिलरीज ब्लड को लेती हैं, देन आफ्टर वो पूरी बॉडी में मूव करती हैं, एंड देन आफ्टर हमारे ईच एंड एवरी सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, और जो उसका वेस्ट CO2 है उसको लेके वापस अगेन मूव टुवर्ड्स द लंग्स करती है. तो ये जो सिस्टम होता है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू होता है, और इसे कहते हैं हम इंटरनल रेस्पिरेशन. अब नाउ डेज वी नो वेरी वेल कि जो कोरोना पैंडेमिक है उसका जो मेन इम्पैक्ट है वो हमारे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पे है. मतलब हमारे लंग्स हैं वो डैमेज होते हैं, और जब हमारे लंग्स डैमेज हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन भी इफेक्टेड होगा. इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब हमारे सेल्स को पर्याप्त अमाउंट जो है पर्याप्त अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जो उसका CO2 वेस्ट प्रोडक्ट है उसको आउट नहीं होगा. सो उससे क्या होगा? हमारा इंटरनल जो फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म में हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो भी फंक्शन करना बंद कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं ऑर्गन फेलियर हो सकता है. सो दैट इज व्हाई कोरोना काल में हमें हमारा जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इस पे फोकस करना चाहिए. हमारा जो लंग्स का हेल्थ है इस पे ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए. नाउ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन आवर नर्वस सिस्टम और आवर ब्रीथिंग. और उससे एक स्टेप पहले बात करें कि जो हमारी टोटल बॉडी है दैट इज गवर्न बाय मेनली 2 सिस्टम्स, जो लीडिंग सिस्टम्स है. बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, एज वी नो, सेल, देन टिश्यूज, देन ऑर्गन, देन ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम्स हमारी बॉडी में कई सिस्टम्स हैं और उससे हमारी बॉडी गवर्न हो रही है. तो आउट ऑफ ऑल द सिस्टम देयर आर मेजर 2 सिस्टम्स जो हमारी बॉडी को लीड करते हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज आवर एंडोक्राइन सिस्टम. और अगर हम नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में कंपेयर करें, सो वी फाइंड दैट नर्वस सिस्टम
is on the top, वो सबसे ऊपर है. अब अगर नर्वस सिस्टम को हम शॉर्ट में समझें, we try to understand about the nervous system in the short. See, nervous system further divided in two parts: central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system, center of the body, and it has two parts: brain and spinal cord. Brain, that is in our skull, and spinal cord, it is in our backbone. There's a cord, it is spinal cord. Peripheral, away from the center, and it has also two parts. First one is somatic nervous system, and second one is autonomic nervous system. Somatic nervous system, हमारी बॉडी के अंदर जो भी वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट आता है, दैट इज गवर्न बाय दिस सोमैटिक नर्वस सिस्टम. लाइक अभी मैं बोल रहा हूँ, दिस इज इन माय विल, कंट्रोल में है. हैंड्स का मूवमेंट, दिस इज इन माय कंट्रोल. रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, व्हाटएवर द थिंग्स व्हिच आर परफॉर्म बाय आवर विल, that is known as the means that is governed by our somatic nervous system. Autonomic nervous system, autonomic nervous system का मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस दैट इज नॉट इन आवर विल, हमारे विल से हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं डाल सकते, दैट इज कम अंडर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. इनवॉलंटरी जो हमारी बॉडी फंक्शंस हैं, लाइक हमारा हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, हमारा बॉडी में डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड का बैलेंस, यूरिनेशन, डेफिकेशन, ये ऑल दैट थिंग्स आर गवर्न्ड बाय आवर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि हम इनसे डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन सारे फंक्शंस पे जो हमारे बॉडी के ऑटोनॉमिक ऑटोमेटाइज सिस्टम्स हैं बॉडी के अंदर, लाइक आवर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, और वी कैन से डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, जितने हैं, दैट इज further controlled by sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system का जो थोड़ा sense है, that is arousal in nature, and parasympathetic means calm down in the nature. For example, अभी हम लोग बैठे हुए, अचानक हमें रनिंग करना पड़ेगा, मतलब कोई थ्रेट आता है, कोई खतरा आता है, तो हम रन करना शुरू करेंगे. तो इन दैट कंडीशन जैसे हम रन करेंगे, उससे पहले हमें थ्रेट मिलेगा, तो हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम कहेगा देयर इज समथिंग डेंजर, सो रन अवे फ्रॉम हियर, दौड़ो यहाँ से, भागो यहाँ से. सो इन दैट कंडीशन हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, या लीड करेगा, उससे हमारी हार्ट रेट इंक्रीज होगी. और एट द सेम टाइम जैसे हम एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे, अगेन हार्ट रेट फिर से नॉर्मल होगी. क्यों? हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को फिर से नॉर्मल की तरफ ले आएगा. पैराशूट, पैरा मींस पैराशूट, हर चीज को स्लो करने की क्षमता रखता है ये. अब सी, हमारा जो ब्रीदिंग है और हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, देयर इज अ स्ट्रांग रिलेशनशिप बिटवीन, इन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है. नॉर्मली अगर हम बात करें कि अगर हम नॉर्मल सिचुएशन में, कंडीशन में, तो हमारी बॉडी में क्या फिजियोलॉजी चल रही है ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, हमारा मैक्सिमम ब्लड का फ्लो टुवर्ड्स द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड ब्रेन की तरफ होता है और इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ है. ब्लड का फ्लो लेस है टुवर्ड्स लिम्स, मतलब लेग्स और हैंड्स की तरफ. हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अपने बेस्ट एफिशिएंसी से काम कर रही है. स्ट्रेस हार्मोन का लेवल लो है, ग्लूकोज नॉर्मल है. रेस्टिंग कंडीशन में आउट ऑफ 100% अगर हमारी बॉडी एनर्जी यूज कर रही है, एनर्जी जनरेट कर रही है, उसमें से 70% से 80% हमारी बॉडी फैट सेल्स को या फैट मेटाबॉलिज्म या बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू जनरेट करती है, और 20 to 30% हमारी बॉडी ग्लूकोज यूज करती है रेस्टिंग कंडीशन में हम जब है. एट द सेम टाइम हमारा जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल रहेगा, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल रहेगा. ठीक है, सो ये रेस्टिंग कंडीशन है. अगर अचानक कोई थ्रेट आता है सामने को, या कोई खतरा आता है, तो हमारी बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक मोड में चली जाएगी, और इसे हम फाइट एंड फ्लाइट मोड भी कहते हैं. और इससे हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू होंगे. क्या होगा? ब्रेन को पता चलेगा देयर इज समथिंग डेंजर, देन ब्रेन चेंज करेगा, और ब्रेन क्या करेगा? सेंड मैसेज करेगा सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेज कन्वे करेगा आपके एड्रिनल ग्लैंड्स को, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा. एंड देन आफ्टर ये स्ट्रेस हार्मोन क्या करेगा? आपकी बॉडी में सीधे लीवर को मैसेज कन्वे करेगा, और लीवर क्या करेगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा ब्लड में. और जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, आपकी बॉडी में क्या होगा?
इंसुलिन स्पाइक करेगा, और जैसे इंसुलिन का लेवल स्पाइक होगा बॉडी मैक्सिमम एनर्जी ग्लूकोज को बर्न करेगी और बीटा ऑक्सीडेशन बहुत कम हो जाएगा, मतलब जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अब बॉडी 70 to 80% ग्लूकोज को यूज करेगी स्ट्रेस कंडीशन में और 20% बीटा ऑक्सीडेशन को यूज करेगी अगर जरूरत पड़ी तो। एट द सेम टाइम आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, ब्रेथ रेट इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी को और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसके लिए बॉडी क्या करेगी, अधिक ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज करेगी, और इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। एट द सेम टाइम ब्लड का फ्लो जो इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ था, आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक की तरफ था, वो कम हो जाएगा। दैट मूव टुवर्ड्स योर लिम्स, हैंड्स और लेग्स की तरफ लिम्स में ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। सो ये होगा, ये सब इन बिल्ड प्रोग्राम है हमारी बॉडी के अंदर, ये होना नॉर्मल प्रोसेस है, ये होगा ही। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो भी थ्रेट है, जो भी खतरा है, हम उससे अपने आप को नहीं बचा सकते, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज, यही जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं लॉन्ग टर्म के लिए बॉडी में होगा, सो दैट इज नॉट गुड। शॉर्ट टर्म के लिए होगा, अभी होगा, उसके बाद बॉडी फिर क्या होगी, जैसी नॉर्मल कंडीशन में आएगी, थ्रेट हट जाएगा, खतरा हट जाएगा, तो बॉडी नॉर्मल में आ जाएगी, बॉडी फिर से पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को लीड कर देगी और बॉडी में सब कुछ नॉर्मल शुरू हो जाएगा। बॉडी का रेस्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम क्या स्टिमुलेट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं बॉडी का हीलिंग मोड स्टिमुलेट हो जाएगा। ये भी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है और नेचुरल हीलिंग प्रोग्रामिंग है, और इसके माध्यम से क्या होगा, आपकी हार्ट रेट फिर से नॉर्मल होगी, ब्लड का फ्लो टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ और टुवर्ड्स ब्रेन रहेगा, लिम्स में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो फिर से अपने मैक्सिमम पे काम करेगी। सेम थिंग, जब हम सिंपैथेटिक मोड में होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं, उससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। बॉडी मतलब हमारी बॉडी अपनी बेस्ट एफिशिएंसी में इम्यूनिटी का यूज नहीं कर पाती व्हेन वी आर इन द फाइट एंड फ्लाइट मोड और व्हेन वी आर इन द सर्वाइवल मोड। But at the same time, when we are in the healing mode or when we are rest and digestive mode, we are in the again come back in our best level of immunity. जो हमारी immunity की best efficiency है, level हम उसे achieve कर लेते हैं। So that is two way through which our body try to maintain balance. हमारी body sympathetic and parasympathetic के through हमारी body हर चीज को balance करती है। But अगर आपकी बॉडी में ये जो बैलेंस है लॉन्ग समय के लिए डिस्टर्ब हो जाता है, लॉन्ग समय के लिए आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस लेवल या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम लीड करेगा, उससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्रॉनिक स्ट्रेस क्रिएट करेगा। देन क्रॉनिक स्ट्रेस कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब हम बात करते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, जो ब्रीदिंग मेथड है और जो आपका ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम है उसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। मतलब हमारा जो ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम है, एक तो विजन के थ्रू मैसेज कन्वे करता है कि देयर इज समथिंग डेंजर, और सेकंड हमारा द वे वी टेक अ ब्रीथ, मतलब हमारा जो रिब केज का एक्सटेंशन है और जो ब्रीदिंग मेथड, इसके थ्रू हमारे ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम को मैसेज मिलता है। अब यहाँ पे एक क्रूशियल रोल ये है कि अगर आप राइट ब्रीदिंग मेथड को यूज करते हैं, इट मींस मैसेज कन्वे होगा ब्रेन को, स्पेशली इन द ब्रेन दैट इज योर ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम, कि एवरीथिंग इज ओके, एंड देन व्हाट हैपन, आपकी इंटरनल फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी नॉर्मल हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी, तो स्टिल अगर आप राइट ब्रीदिंग मेथड यूज करते हैं तो अपनी बॉडी को नॉर्मल कर सकते हैं। सेम वे में इफ यू परफॉर्मिंग रॉन्ग मेथड ऑफ ब्रीदिंग, अगर आप ब्रीदिंग का रॉन्ग मेथड को परफॉर्म करते हैं, इन दैट कंडीशन व्हाट हैपन, आपकी बॉडी की इंटरनल जो फिजियोलॉजी है और साइकोलॉजी वो डिस्टर्ब होगी, और इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म पे आपको हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ेगा। ऑल्दो अगर सब कुछ नॉर्मल है, मतलब आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, बट ड्यू टू द लाइफस्टाइल आपने एक रॉन्ग मेथड ऑफ ब्रीथिंग जो है उसको अडॉप्ट कर चुके हैं, देन व्हाट हैपन, इवन दो सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी आपकी रॉन्ग मेथड ऑफ ब्रीथिंग मैसेज ब्रेन को करेगा कि देयर इज समथिंग नॉट नॉर्मल, और फिर ऑटोनॉमी सिस्टम क्या करेगा, अपने अंदर जो फाइट एंड फ्लाइट मोड उसको स्टिमुलेट कर देगा, और इससे क्या होगा, आपको फिर से लॉन्ग टर्म पे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। मतलब सब कुछ अच्छा होते हुए भी अगर आपका ब्रीथिंग मेथड गड़बड़ है और रॉन्ग है, तो भी आपकी बॉडी को लॉन्ग टर्म पे हेल्थ इश्यूज और हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। Now next, we try to understand a relationship between breathing and the brain.
सी नॉर्मली जो हमारा ब्रेन है दैट इज फॉर डिवाइडेड टू पार्ट्स, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। अब जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो हमारी राइट बॉडी को गवर्न करता है, और जो हमारा राइट हेमिस्फीयर ब्रेन है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट को गवर्न करता है। अब जब ब्रीदिंग का रिलेशनशिप देखते हैं तो जो हमारा जो ये दोनों लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रल है, लेफ्ट नॉस्ट्रल हमारे राइट ब्रेन को स्टिमुलेट करता है और राइट नॉस्ट्रल हमारे लेफ्ट ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। इट मीन्स अगर हम अभी चेक करें, अगर मेरी अभी लेफ्ट नॉस्ट्रल डोमिनेट कर रही है, लीड कर रही है, 24 आवर्स में ये हर समय शिफ्ट होते रहते हैं अराउंड, बोलते हैं एन एवरेज दैट इज अराउंड 60 मिनट्स टू 90 मिनट्स, 1 से 1.5 घंटे में ये जो नॉस्ट्रल का डोमिनेशन है ये शिफ्ट होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रल डोमिनेट कर रहा है, इट मीन्स मेरी ब्रेन में जो राइट पार्ट है वो ज्यादा स्टिमुलेट हो रहा है। ठीक है, अगर किसी का लेफ्ट नॉस्ट्रल स्टिमुलेट कर रहा है, इट मींस उस राइट नॉस्ट्रल स्टिमुलेट कर रहा है, इट मींस उसका ब्रेन का लेफ्ट पार्ट ज्यादा यूज हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है। और सेम वे में एट द सेम टाइम अगर हम फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप देखें तो लेफ्ट नॉस्ट्रल है वो हमारी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक हीलिंग मोड, रिलैक्स मोड को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा राइट नॉस्ट्रल है वो हमारी बॉडी के सिंपैथेटिक या फाइट एंड फ्लाइट मोड को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल लीड कर रहा है, इट मींस आपकी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लीड कर रही है, और अगर आपकी बॉडी में राइट नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिवेट है, इट मींस आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा लीड कर रहा है। और अगर दोनों के दोनों नॉस्ट्रल इक्वली एक्टिवेट है, इट मींस कि आपकी बॉडी में अभी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों बैलेंस है, इट मींस आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी बैलेंस स्टेज में है। अब हम देख सकते हैं कि सी नॉर्मली क्या होता है कि जब हम हैप्पी, रिलैक्स और डीप स्लीप मोड में होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक लीड कर रहा होता है, या हमारी बॉडी नॉर्मल मोड में होती है, बैलेंस मोड में होती है। और एट द सेम टाइम हम जब टेंशन, स्ट्रेस और इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, इवन आफ्टर डाइजेशन, हमारी बॉडी में जो हमारा राइट नॉस्ट्रल है वो ज्यादा क्या करता है, लीड करता है। अब सिंपली हमने सुना होगा एक नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, या अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं जिसे, उसके पीछे की सिंपल सी साइंस यही है कि हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ को इन करते हैं, राइट से ब्रीथ को आउट किया, एक्सहेल, एंड देन राइट से इनहेल किया एंड लेफ्ट से एक्सहेल किया। दिस इज सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वी नॉट टॉक अबाउट, अभी हम बात नहीं करेंगे प्राणायाम की। इससे क्या होता है, इफ यू डू सो, अगर हम ऐसा करते हैं हमारे दोनों के दोनों नॉस्ट्रल्स इक्वली एक्टिवेट होते हैं, और वी कैन क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन आवर लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रल, एंड देन आफ्टर व्हाट हैपन, ये जब बैलेंस होंगे तो हमारा ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर बैलेंस होंगे, और देन आफ्टर व्हाट हैपन, हमारी बॉडी के लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, पूरी बॉडी जो पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, उसको लीड करके बैलेंस करते हैं। सो सिंपली डूइंग अनुलोम विलोम प्राणायाम और लेफ्ट अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग प्रैक्टिस क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस क्रिएट करती है, हमारी बॉडी की इंटरनल फिजियोलॉजी को बैलेंस्ड मोड में ले आती है। इट मींस हमारा साइकोलॉजिकल और हमारा जो फिजियोलॉजिकल बॉडी है वो टोटली बैलेंस हो जाता है सिंपल से ब्रीथिंग प्रैक्टिस करने से। नाउ टाइप ऑफ ब्रीथिंग एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। सो सी नॉर्मली वी टेक 3 टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग। नॉर्मली हम 3 प्रकार की ब्रीथिंग लेते हैं, एब्डोमिनल ब्रीथिंग, और इसे हम डायफ्रागमेटिक ब्रीथिंग कहते हैं, डायफ्रागमेटिक ब्रीथिंग। सेकंड थोरेसिक ब्रीथिंग, एंड थर्ड कैविकुलर ब्रीथिंग। एब्डोमिनल ब्रीथिंग जिसे हम कहते हैं राइट वे ऑफ ब्रीथिंग, और डायफ्रागमेटिक ब्रीथिंग ये कब होती है, व्हेन वी आर इन द रिलैक्स मोड। और इसमें क्या होता है, आपके जो लंग्स हैं उसके जो लोअर लोब्स हैं, नॉर्मली वी डिवाइड आवर लंग्स इन 3 पार्ट्स, अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब। सो द लोअर लोब्स आर एक्टिवेटेड व्हेन वी आर टेकिंग एब्डोमिनल ब्रीथिंग, और एब्डोमिनल मसल्स का इन एंड आउट होता है, सो दैट इज द एब्डोमिनल ब्रीथिंग। और ये कब होती है, व्हेन वी आर इन द रिलैक्स मोड। क्यों होती है, सिंपल सी बात है, हमें एनर्जी ऑफ जो बॉडी को एनर्जी चाहिए वो लो अमाउंट में चाहिए होती है, क्योंकि हम रिलैक्स मोड में हैं। सो दैट इज व्हाई हमारे लोअर लोब्स जो है लंग्स के, वो हमें इतनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करने में हेल्पफुल होते हैं। नाउ थोरेसिक ब्रीथिंग, इट मींस हमारा रिबकेज थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, और इसमें हमारे लोअर लोब और मिडिल लोब ऑफ जो लंग्स हैं उनका यूज होता है, और ये
तब हमारी बॉडी यूज करती है व्हेन वी डूइंग moderate level of physical activity like walking, jogging, doing some homework, घर के कुछ काम कर रहे हैं. In that condition we go for thoracic breathing. ठीक है. If you are doing walking, moderate level of physical activity, और अगर आपकी बॉडी thoracic breathing कर रही है, it's okay, ये अच्छी बात है. बट अगर आप चुपचाप घर पे बैठे हैं, रिलैक्स लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, स्टिल आप ऐसी ब्रीदिंग कर रहे हैं, थ्रेसिक ब्रीदिंग परफॉर्म कर रहे हैं, इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी. आपकी बॉडी के अंदर मतलब आपकी थॉट प्रोसेस और आपकी फिजियोलॉजी में कुछ तो डिस्टर्ब चल रहा है, आपकी बॉडी स्ट्रेस में है. सेम वे में कैविकुलर ब्रीदिंग कब हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, व्हेन वी गो फॉर एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी. फॉर एग्जांपल आप रनिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कर रहे हैं, आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं. इन दैट कंडीशन हमारी बॉडी कैविकुलर ब्रीदिंग करती है, क्योंकि उससे हमारी बॉडी के maximum amount of energy चाहिए होती है. So that is why our lungs use our all three lobes, lower, middle and upper lobes, use करके हमारी बॉडी को ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करती है और CO2 को पुल आउट करती है बॉडी से. अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं और आपकी बॉडी कैविकुलर ब्रीदिंग कर रही है, दैट इज नॉर्मल. बट स्टिल आप बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं और आप ऐसी ब्रीदिंग कर रहे हैं, कैविकुलर ब्रीदिंग का यूज कर रहे हैं, इट मींस आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है. आपको सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा वेयर व्हाट इज हैपनिंग इन आवर बॉडी के अंदर क्या हो रहा है. ठीक है. इट मींस हम कह सकते हैं कि थ्रू ब्रीदिंग मेथड, अगर ये तीनों ब्रीदिंग मेथड्स हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग और कैविकुलर ब्रीदिंग, थ्रू विच वी चेक आवर हेल्थ स्टेटस ऑफ द बॉडी का जो हेल्थ स्टेटस है, प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस है, उसे हम चेक कर सकते हैं. और एट द सेम टाइम हम अपनी बॉडी की ब्रीदिंग को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अवेयर हो जाएंगे कि विच टाइप ऑफ ब्रीदिंग वी आर परफॉर्मिंग एंड दिस इज ओके फॉर दिस टाइम और दिस इज नॉट ओके फॉर दिस टाइम. नाउ नेक्स्ट थिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज. नाउडेज हम चारों तरफ सुनते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज. नाउ व्हाट इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज? Simply train mind through breathing. Train your mind through breathing, or we can say scientific manipulation of breathing, which make physiological balance between your brain and body. मतलब breathing एक scientific manipulation, breathing exercise एक scientific manipulation through which our body, हम अपनी body के अंदर physiological और psychological balance लाते हैं. अब breathing exercise more effective और immediately applicable method है, बहुत effective है और मतलब immediately applicable है, और through which हम अपनी body के stress को manage कर सकते हैं. स्ट्रेस मतलब हमारा यहाँ पे चीज क्लियर करना चाहता हूँ. स्ट्रेस का मतलब, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रेस ही हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम आती है. इट मे बी फिजिकल स्ट्रेस, इट मे बी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, इट मे बी इमोशनल स्ट्रेस. इसलिए स्ट्रेस मतलब वो प्रॉब्लम, वो थ्रेट हमारी बॉडी के लिए. और दूसरा कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इट इज इजी टू परफॉर्म, हम इसको बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आर द बेस फॉर प्राणायामा. जो हाई लेवल ऑफ प्रैक्टिस है प्राणायामा, उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बेस का काम करती है. क्यों? थ्रू ब्रीदिंग एक्सरसाइज वी प्रिपेयर आवर रेस्पिरेटरी मसल्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस सिस्टम फॉर द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा. सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारी बॉडी को कंडीशन कर देती है, स्पेशली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम को, जिससे हम फर्दर जो प्राणायाम प्रैक्टिस है उसे परफॉर्म कर सकते हैं. Once again, welcome you all in the second part of presentation on the same topic. So we continue our presentation from the same slide where we stop our last video or end up our last video. So this was the slide on which we were in the last video, that is a type of breathing. You know, there are three types of breathing. We talked in the last video, and then after breathing exercise, we know scientific manipulation of breathing, which make physiological and psychological balance in our body. That is breathing exercise. Now, next we move for, that is the breathing practice, or we can say type of breathing practices. See, if you Google, अगर आप Google करेंगे, there are a number of breathing exercises you find. बहुत सारी breathing exercises find. But see, the core of all that breathing exercise, whatever the base of breathing exercise, that is this one. This is RSA, respiratory sinus arrhythmia.
ये हमारी बॉडी का सिंपल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके ऊपर जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन दिस फिनोमिना। इसमें नॉर्मली क्या होता है, व्हेन वी टेक ब्रीथ इन, हम जो ब्रीथ इन करते हैं आवर हार्ट रेट गोज अप, हार्ट रेट स्पीड अप होता है, एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट एक्सेल आवर हार्ट बीट गोज स्लो, हमारी हार्ट बीट कम होती है। सो दैट इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी साइनस, or that is the base on which we divide all the breathing exercise. And all the breathing exercise divide into three categories: stimulating practice, calming practice, or balancing practice. Stimulating practice means that breathing exercise in which your inhalation part is longer than your exhalation part. It means आपका जो breathing intake का part है वो लंबा होगा as compare breathe exhale करने का. For example, if I take breathe for next 5 seconds and exhale it in next 3 seconds, again take it in next 5 seconds and exhale in 3 seconds, means my exhalation part, inhalation part is longer than exhalation part. If I do so for the next 10 minutes or 15 minutes, मेरी बॉडी स्टिमुलेटिंग प्रैक्टिस में आ जाएगी, बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आ जाएगी, हार्ट रेट स्पीड अप हो जाएगा. तो such type of practice in which our inhalation part is longer than exhalation part, वो stimulative practice में आती है. Now calming practice or calm down practice means in which your exhalation is longer than your inhalation. It means आप जो breathe inhale करते हैं इससे ज्यादा exhale करते हैं, समय का duration है, amount का अंतर नहीं होता है. For example, if I take a breath for next 3 seconds, सेम अमाउंट ऑफ ब्रीथ, जितना अमाउंट ऑफ ब्रीथ है उसी को हम एक्सेल करेंगे नेक्स्ट 5 सेकंड्स में, मतलब हमारा एक्सेलेशन पार्ट है उसको इंक्रीज कर रहे हैं. सो इफ वी डू सो फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट हो रहा है. ठीक है. सेम वे में बैलेंसिंग प्रैक्टिस का मतलब है कि उससे क्या होगा, आपका इक्वल अमाउंट ऑफ इनहेलेशन एक्सेलेशन होगा, और अगर आप ऐसा करते हैं फॉर नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स, आपकी बॉडी में आपका जो नर्वस सिस्टम है इसमें जो स्पेशली आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम वो बैलेंस हो जाएगा. इट मींस योर आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बैलेंस मोड में आ जाएगा. इट मींस कि थ्रू ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज है हम अपनी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. अगर आपको अपनी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चाहिए स्टिमुलेट करना है, देन यू हैव टू परफॉर्म स्टिमुलेटिंग प्रैक्टिस. अगर अपनी बॉडी में आपको हीलिंग मोड को एक्टिवेट करना है तो आपको परफॉर्म करने का जो काम डाउन प्रैक्टिस होगी. और अगर आपको बॉडी को बैलेंस मोड में लाना है, देन यू हैव टू प्रैक्टिस such type of breathing exercise in which inhalation exhalation का जो ratio that should be equal होना चाहिए. Now breathing and brain waves. See normally what happen in our, as we know, जो हमारा brain है that is a bunch of neurons, जो neurons का bunch है, और जो neurons है they communicate to each other, जो communicate करते हैं through न्यूरो इम्पल्सेस के थ्रू करते हैं. तो जो न्यूरो इम्पल्सेस का ट्रैवलिंग का स्पीड है, ऑन दैट स्पीड जो हमारे जो ब्रेन जो इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं इन्हें हम ब्रेन वेव्स भी कहते हैं, और इसी को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड, लाइक गामा, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा. अब आउट ऑफ 100% ब्रेन, अगर ब्रेन को 100% मानते हैं तो पूरे ब्रेन में कुछ एरियाज में फ्रीक्वेंसी अधिक तेजी से काम कर रहे होंगे न्यूरॉन्स, कुछ में स्लो कर रहे होंगे, किस में मॉडरेट कर रहे होंगे. सो ऑन दैट बेसिस हम कह सकते हैं कि जो ब्रेन में मैक्सिमम पार्ट में लीड कर रहा होगा फ्रीक्वेंसी, हम कहेंगे हमारा ब्रेन उस फ्रीक्वेंसी में है. फॉर एग्जाम्पल आपके ब्रेन में अल्फा जो ब्रेन वेव्स है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, वो मैक्सिमम पार्ट में लीड कर रही है, तो उस समय बीटा भी होगी, थीटा भी होगी, डेल्टा भी होगी. लेकिन आउट ऑफ दिस ऑल 5 जो फ्रीक्वेंसीज हैं जो है, उसमें आपकी मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है, अल्फा डोमिनेट कर रही है, तो हम कहेंगे हमारा ब्रेन अल्फा स्टेज में है. सो सी बीटा ब्रेन वेव्स होती है तो हम क्या होता है, हमारा टेंस होते हैं, अफ्रेड होते हैं, इरिटेट होते हैं, थोड़ा अलर्ट भी होते हैं. ठीक है. अल्फा ब्रेन स्टेज का मतलब क्या होता है, वी आर इन द प्रेजेंट, हम फिजिकली मेंटली स्टेबल और रिलैक्स मोड में रहते हैं. थीटा ब्रेन वेव्स अगर आपके ब्रेन में लीड करे, इट मींस आप स्लीप मोड में जा रहे हैं और डीप मेडिटेटिव मोड में जा रहे हैं. और अगर डेल्टा है, इट मींस आप डीप स्लीप और वेरी डीप मेडिटेटिव और इट में भी अनकॉन्शियस स्टेज में जा रहे हैं. अब थ्रू ब्रीदिंग के थ्रू हम इस सारी चीजों को, मतलब हमारे ब्रेन वेव्स को चेंज कर सकते हैं.
और आउट ऑफ दिस बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, एक कॉमन इंसान के लिए, एक सेडेंटरी पीपल के लिए अल्फा स्टेज सबसे बेहतर है, बिकॉज अल्फा स्टेज में आपका जो बेस्ट लर्निंग आउटकम निकल सकता है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर आप जब भी पढ़ने जा रहे हैं या एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आप जब भी कोई चीज परफॉर्म कर रहे हैं और न्यू स्किल लर्न करना चाहते हैं, इन दैट सिचुएशन, बिफोर दैट यू हैव टू डू सच टाइप ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज व्हिच मेक योर ब्रेन इन अल्फा स्टेज, आपके ब्रेन को अल्फा स्टेज में ले जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आप जो भी लर्निंग करेंगे उससे बेस्ट आउटकम आपको मिल सकता है। बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं, सिंपली अल्फा ब्रेन वेव्स के लिए कहते हैं कि इसमें क्या करना है आपको, 4:8:8:4, 4:8:8:4 का रेशियो में आपको ब्रीथ करना है। इट मीन्स you have to take a breath for 4 seconds, then you have to hold for 8 seconds, sorry, and then you have to exhale it for next 8 seconds, and then after exhalation, full exhalation, you have to hold for next 4 seconds. अगर आप ऐसा करेंगे तो अल्फा ब्रेन वेव्स को आप एक्टिवेट करेंगे। ये एक मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज जिसके थ्रू आप अपने अल्फा ब्रेन वेव्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। थीटा और डेल्टा थोड़ा हाई लेवल ऑफ प्रैक्टिस है। अल्फा के लिए अगर आप नॉर्मली योगिक ब्रीथिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं, मतलब स्लोली ब्रीथ को इन करते हैं, एक्सेल लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करते हैं एज कम्पेयर इनहेलेशन, और फिर हल्का सा पॉज करते हैं, रोकते हैं ब्रीथ को, फिर इनहेल करते हैं, फिर एक्सेल करते हैं, तो इससे भी आपका ब्रेन धीरे धीरे अल्फा स्टेज में आ जाता है। नाउ ब्रीदिंग रिटेंशन और हाइपोक्सिया, अगर हम ब्रीथ को थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं, स्पेशली हम प्राणायाम में हाइपोक्सिया की बात करते हैं, हम ब्रीथ को होल्ड करते हैं, तो आप ब्रीथ को जब होल्ड करते हैं या प्राणायाम में हम जब कुंभक की बात करते हैं तो हमारी बॉडी पे इसका भी बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। सी एट द सेम टाइम इन द फर्स्ट स्लाइड मैंने बात की थी ऑक्सीजन और CO2 की। ऑक्सीजन का जो रोल है हमारी बॉडी में मैंने बताया था, CO2 का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ CO2 इज दैट अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ CO2 रहेगा, अगर पर्याप्त अमाउंट में CO2 रहेगा, सर्टेन अमाउंट में CO2 रहेगा, तभी आपकी बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा। इसको दूसरे तरीके से सोचते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ CO2 होने पे ही आपके जो हीमोग्लोबिन्स हैं वो सर्टेन पर्याप्त अमाउंट में ऑक्सीजन को लाके रिलीज करेंगे आपके बॉडी में सेल्स के लिए। तो अगर आपका CO2 लेवल डिस्टर्ब है तो इससे आपका O2 लेवल भी डिस्टर्ब होगा, और O2 लेवल डिस्टर्ब होगा तो बॉडी की इंटरनल फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी। Now there are many more benefits when we hold our breath. हम जब breath को hold करते हैं, for example, hypoxia boost our stem cells production. हमारी बॉडी में जब हम होल्ड करते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स जो स्टेम सेल्स हैं वो बूस्टअप हो जाते हैं और उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इम्प्रूव होता है। स्टेम सेल्स हम जानते हैं दैट आर द मास्टर सेल्स ऑफ आवर बॉडी। सेम वे में जब हम हाइपोक्सिया की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसका जो फॉर्मेशन है वो इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है। इससे क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसके अगेंस्ट फाइट करने में नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत क्रूशियल रोल है, और वी कैन से हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल जो इफेक्ट है उससे बचाता है। हाइपोक्सिया ट्रेनिंग में आपकी जो एजिंग है उसको भी नॉर्मल करने में इफेक्ट मतलब यूजफुल है। और इसका जो मेन रोल होता है वो क्या होता है, आपकी बॉडी में जो आपका टेलोमेयर्स हैं, जो आपकी क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स मतलब जो आपके DNA में आपकी कोडिंग है, तो जो क्रोमोसोम्स के एट में जो लेयर है टेलोमेयर की, वो उसकी जो शॉर्टनिंग होती है तो उसे हम एजिंग कहते हैं। एक सेल से जब 2 बेबी सेल्स बनते हैं तो जो टेलोमेयर शॉर्ट होता है, सो दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। अब और जो टेलोमेयर जैसे शॉर्ट होते चल जाता है टेलोमेयर, एक समय आता है उससे फिर सेल डेड हो जाता है। नॉर्मल शॉर्टनिंग ऑफ टेलोमेयर इज नॉर्मल एजिंग, और अगर ये एबनॉर्मल शॉर्टनिंग हो रही, बहुत स्पीड अप हो रही, तो इसे कहते हैं एबनॉर्मल एजिंग, मतलब एबनॉर्मल एजिंग कहा जाता है। सो दैट इज व्हाई थ्रू हाइपोक्सिया ट्रेनिंग, थ्रू ब्रीथ रिटेंशन जो है सही तरीके से परफॉर्म करने पे हम अपनी जो एजिंग उसे नॉर्मल कर सकते हैं। हाइपोक्सिया ट्रेनिंग कई तरीके से की जा सकती है। वन ऑफ द मेथड इज लाइक दैट, सिंपली व्हाट वी टेक, वी गो फॉर द 10 repetition or maybe 5 repetition of breathe और repetitive breathe, जिसे हम भ्रस्त्रिका प्राणायाम भी कहते हैं। पर बिगनर्स के लिए हमें बस like that हमें rapid breathe लेनी है, and then after take a breath in and hold it,
for next 10 seconds or 15 seconds, up to that level where you feel comfortable or you enjoy the practice. अब वहां तक होल्ड कर रहे हैं, that is for the beginners. और उसके बाद थोड़े समय बाद क्या करना है, हमें इंटरनल एक्सटर्नल रिटेंशन दोनों पे काम करना है. कैसे करना है? सिंपली रेपिटेटिव ब्रीथ ली मैंने 5 times. Internal hold, then breathe out. Again 5 repetitive breathing. This time breathe out, पूरा breathe को मैंने out किया. Go for external retention. So this is one type of hypoxia training. ये एक प्रकार की hypoxia training है. Breathing and immunity. Breathing से हमारी immunity पे बहुत strong impact पड़ता है और breathing का बहुत strong relationship है. अभी हम सब जानते हैं कि जो ये कोविड पैंडेमिक है, इसमें हमारी बॉडी पे लॉट ऑफ स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है. और ये जो स्ट्रेस है ना, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, दबा देता है. स्ट्रेस से क्या होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, जैसे स्ट्रेस होगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज होगा, उससे हमारे एड्रिनल ग्लैंड स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करेंगे और बॉडी के अंदर क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी. बट एट द सेम टाइम अगर आप अपनी बॉडी के स्ट्रेस लेवल को बैलेंस करते हैं, उससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी अपने बेस्ट एफिशिएंसी में वर्क करेगी. स्ट्रेस तो लाइफ में रहेगा, पर स्ट्रेस को मैनेज करना ये हमारा क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि स्ट्रेस हमारी बॉडी का इनबिल्ट प्रोग्रामिंग है सर्वाइवल के लिए. स्ट्रेस रहेगा तभी सर्वाइव है. स्ट्रेस रहेगा अगर है तभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ. अगर मैं स्ट्रेस में रहेगा तो मैं क्यों इस वीडियो को बनाता. मुझे है लाइफ में कि नहीं, मुझे अपना नॉलेज और इंफॉर्मेशन शेयर करना है, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना है, तो इसलिए एक स्ट्रेस क्रिएट किया मैंने अपने ऊपर. और देन आफ्टर व्हाट, ये सिस्टम परफॉर्म किया और ये वीडियो परफॉर्म की. सेम वे में जो मेन कोर है इसका, इस स्लाइड का, दैट इज हैविंग गुड इम्यूनिटी और यूजिंग दैट इम्यूनिटी इन द बेस्ट एफिशिएंसी. दोनों अलग चीजें हैं. आपकी अच्छी इम्यूनिटी है लेकिन स्ट्रेस के कारण वो सप्रेस है, तो आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी का बेस्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं. सो विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम अपनी बॉडी को क्या करते हैं, इम्यूनिटी को बेस्ट वे में यूज करते हैं और बॉडी को हीलिंग मोड में ले आते हैं. नाउ एक सिंपल प्रैक्टिस, ब्रीदिंग प्रैक्टिस, जो सबसे इफेक्टिव है और सबसे सिंपल है और इसको कभी परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज योगिक ब्रीदिंग, और वी कैन से स्लो डीप ब्रीदिंग. इसमें सिंपली क्या करना है, आपको ब्रीथ इन करना है फॉर नेक्स्ट 5 seconds एंड देन नेक्स्ट 5 seconds ब्रीथ को आउट करना है. अगर आप ऐसा करेंगे तो आप 1 मिनट में 6 बार ब्रीथ लेंगे, 6 times. नॉर्मली हम कितनी बार ब्रीथ लेते हैं? नॉर्मली हम 12 से 14 और 16 और 18 टाइम्स ब्रीथ लेते हैं. सो सी, आपने अपनी ब्रीदिंग 16 और 14 से सीधे कहाँ पे लिया है, 6 टाइम्स में. सेम वे में अगर आप होल्ड करते हैं, ये जो प्रैक्टिस है लॉन्ग डीप ब्रीदिंग की और योगिक ब्रीदिंग की, तो आप अब 1 मिनट में बस 4 बार ब्रीथ लेंगे. कैसे? सी, टेक अ ब्रीथ फॉर नेक्स्ट 5 seconds, hold it for next 5 seconds and then exhale for next 5 seconds. ऐसे करेंगे तो आप पूरे 1 मिनट में कितनी बार? 4 बार ब्रीथ लेंगे. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, इस अर्थ पे जितने भी एनिमल्स जिनकी सर्वाइविंग, जो ज्यादा दिनों तक सर्वाइव करते हैं अर्थ पे, उनकी लाइफ ड्यूरेशन अधिक होती है, उनकी ब्रीदिंग फ्रिक्वेंसी कम होती है. फॉर एग्जाम्पल टॉर्टोइस, पाइथन, एलिफेंट, ह्यूमन बींग्स, हमारी ब्रीदिंग फ्रिक्वेंसी कम है एज कंपेयर वो एनिमल्स जिनकी लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है वो कम है, लाइक बर्ड्स, रैबिट, रैट, इनकी ब्रीदिंग फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है. सो सी, दैट इज व्हाई बोलते हैं ना, सांसों पे, हर सांस पे, मतलब गिन के सांसें मिली है. ये अलग एरिया है जिसमें हम कभी फर्दर डिस्कस करेंगे कि आपकी ब्रीदिंग का आपकी बॉडी में क्या फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, उससे आपकी एजिंग पे क्या असर पड़ता है.
बट सी अगर हम बात करें आज स्पेसिफिक साइंस ऑफ ब्रीदिंग के रिगार्डिंग, सो स्लो ब्रीदिंग आपकी बॉडी में क्या क्या इंप्रूव करता है, बहुत सारे इंप्रूवमेंट है, बट जो कोर इंप्रूवमेंट है दैट इज हार्ट जो रेट ऑफ वेरिएबिलिटी वो आपकी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। रेस्पिरेटरी साइड एथेरिमिया है वो नॉर्मल रहता है। अल्फा ब्रेन्स जो मैंने बताया था, अल्फा ब्रेन में जो वेव्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी, एजिंग प्रोसेस नॉर्मल होगी, बॉडी के अंदर हार्मोन्स नॉर्मल रहेंगे और न्यूमरस बेनिफिट्स मिलेगा, और एट द एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। सो दैट इज वाई आप इसको कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, अवॉइड कीजिएगा जस्ट खाना खाने के बाद, आफ्टर मील अवॉइड इट, तुरंत अवॉइड कीजिएगा, बट आफ्टर हाफ एन आवर यू मे बी परफॉर्म दिस प्रैक्टिस। Now, the next part of this presentation, that is pranayama, or we are start this presentation in our next video. Namaskar, once again, welcome you all in third video of the same presentation, that is the science of breathing and pranayama. So till now, we try to understand about the science of breathing, means, wait, the impact of breathing on our physical or psychological dimension of personality, and what are the different methods of breathing, and what is the impact of breathing on our body and mind. Till now we try to understand this. Now we go for the next part of this presentation, the core part of this presentation, that is the pranayama. So if we talk about pranayama, simply the meaning of pranayama is extension of prana in our body, that is a pranayama practice. Means pranayama is a yogic practice through which we extend prana in our body. Now the next question comes, that what is prana? So see, prana is a vital energy or a force behind all the forces of this universe. हम कह सकते हैं कि भाई प्राण वो ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं के पीछे फोर्स करती है, और दिस इज अ कॉस्मिक एनर्जी, दैट इज अ प्राण. अब जो प्राण है दैट इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर, हर लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, उसमें प्राण अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल, जो फूड हम इनटेक करते हैं उसके अंदर प्राण है, वाटर वी ड्रिंक देयर इज अ प्राण, एयर वी ब्रीथ दैट इज अ हैविंग प्राण, सनलाइट इट हैज आल्सो प्राण. सो एवरीवेयर प्राण है हमारे अंदर, बट द अमाउंट एंड फ्रिक्वेंसी एंड द क्वालिटी ऑफ प्राण है वो डिफर करता है. फॉर एग्जाम्पल, लिविंग ऑर्गन्स में जो भी हैं उनके अंदर प्राण की क्वालिटी बेटर होती है एज कंपेयर नॉन लिविंग थिंग्स में. सेम वे में इफ यू टेक अ फ्रेश फ्रूट्स, उसमें प्राण की फ्रिक्वेंसी अधिक है एज कंपेयर जो फ्रूट फ्रेश नहीं है. सेम वे जो वेजिटेबल्स फ्रेश है उनमें अच्छा प्राण मिलेगा, जो हेल्दी ग्रेन है, अनाज है, उनमें अच्छा प्राण है, और जो बहुत ज्यादा ही मैनिपुलेटेड ग्रेन है, अनाज है, उनके अंदर जो प्राण का फ्रिक्वेंसी वो उतना अच्छा नहीं रहेगा. सो सेम वे एयर, अगर आप फ्रेश एयर लेंगे तो उसमें प्राण की जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज गुड, एज कंपेयर अगर एयर जो है फ्रेश नहीं है, पॉल्यूटेड है, तो वहाँ प्राण का फ्रिक्वेंसी उसमें कम होगा. नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट कि भाई प्राणायाम की प्रैक्टिस को ब्रीदिंग से क्यों जोड़ा गया. सी, जो हमारे ओल्ड स्कॉलर थे, रिसर्चर्स थे, या जिन्हें हम ऋषि मुनीज कहते हैं, उन्होंने ये जो ट्रायल एंड एरर करके ये पाया कि हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम जो प्राण का फ्लो होता है दैट इज द मीन ऑफ एयर. बिकॉज अबाउट फूड वी टेक ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे, हम 2 से 3 बार खाना खाते हैं. सो देयर इज अ फिक्स अमाउंट ऑफ प्राण कम्स इन आवर बॉडी थ्रू द फूड. About water, again, there's a fixed amount of water we drink in the day. It may be 2 liters or 3 liters. So what about the breath? We take 24 into 7. Till birth to death, we take a breath. So breath is the mean through which our body gets maximum amount of prana. That is why pranayam को breath के साथ जोड़ा गया है. अब there are 2 thought of schools in yoga. बहुत सारे थॉट ऑफ स्कूल्स हैं, लेकिन these are the 2 leading schools like Raj Yoga and Hatha Yoga. Raj Yoga कहता है, Raj Yoga says that if you want to control your mind, if you control your mind, you are naturally able to control your प्राण. प्राण को आप कंट्रोल कर सकते हैं.
हठ योग कहता है कि यू हैव टू कंट्रोल योर प्राण, देन यू आर एबल टू कंट्रोल योर माइंड। दोनों वाइस वर्सा है। सो दैट इज वाई हठ योग थोड़ा इजी है। इसमें हम अपने प्राण है उसको अपनी ब्रीदिंग के थ्रू कंट्रोल करने की बात करते हैं, एक्सटेंड करने की बात करते हैं, जिससे हमारे माइंड पे इम्पैक्ट पड़ता है। राजयोग कहता है कि आप माइंड पे काम कीजिए, आपकी जो प्राण है आप खुद ब खुद आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, या आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। हठ योग कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आप प्राण को मैनिपुलेट कीजिए तो आपका माइंड खुद ब खुद मैनिपुलेट हो जाएगा। सो दैट इज वाई इन हठ योगा वी mostly concerned about the breathe and the pran. Now in the Raj Yoga, as we know, there are Ashtanga Yoga, concept of Ashtanga Yoga as Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Dharana, Dhyan, Samadhi. Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, Samadhi. So see, जो प्राणायाम है that comes after asanas. So फॉर अ सेडेंटरी पीपल, एक नॉर्मल इंसान के लिए आसन्स क्यों परफॉर्म करते हैं? व्हाई डू वी परफॉर्म आसन्स? टू गेट हेल्थ बेनिफिट्स। हमको हेल्थ बेनिफिट्स चाहिए। वी इंप्रूव आवर फ्लेक्सिबिलिटी, वी वांट टू इंप्रूव आवर मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस। इफ यू परफॉर्म आसन इन द रिदमिक वे, वी इंप्रूव आवर कार्डियोवास्कुलर efficiency. मतलब all about the fitness, we talk about the fitness, that is why we perform asanas. But जो योग साधक है वो आसन्स को फिट होने के लिए परफॉर्म नहीं करते हैं। दे परफॉर्म आसन्स टू आसन और डिफरेंट आसन्स टू प्रिपेयर देयर बॉडी फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ साधना, दैट इज प्राणायाम। मीन्स ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ आसन्स, दे प्रिपेयर देयर बॉडी फॉर द प्राणायाम प्रैक्टिस। ये एम है, योगिक एम है एक साधक के लिए। नॉर्मल सेडेंटरी पीपल के लिए उसका जो बाय प्रोडक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आसन्स का, वो हमारे लिए हमारा मेन एम होता है। Now, after pranayama, we go for the next antarang sadhana in the Ashtanga Yoga, that is pratyahar, dharana, dhyan, samadhi. So that is why when we do pranayama, we prepare ourselves for going inside, अपने अंदर जाने की बात करते हैं, और मेनली हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट लेवल के जो साधना है मेडिटेशन, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। सो दैट इज द रोल ऑफ प्राणायाम फॉर योगी। और फॉर सेडेंटरी पीपल, प्राणायाम का मतलब है उससे हम एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात करते हैं, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन CO2 का जो लेवल है वो बैलेंस रहे, उससे हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो बैलेंस स्टेज में रहे। नाउ योगिक फिजियोलॉजी ऑफ प्राणायाम। जो योगिक फिजियोलॉजी है प्राणायाम की, वो मेनली 3 कोर वर्ड्स पे काम करती है: प्राण, नाडीज और चक्रास और चक्र। What is pran? I already told. Pran is a vital energy or force behind all the forces of universe, or it is an energy behind all the energies of this universe. What is nadi? Nadi is a subtle channel in which pran flows. Nadi वो एक channel जिसमें प्राण flow करता है. And what are the chakras or chakras are the junction point. Chakras are the junction point where nadis intersect each other. मतलब nadis का जो junction point है, that is chakras, and the function of chakra is to regulate the flow of प्राण। जो प्राण का फ्लो है उसे रेगुलेट करना। मतलब जहाँ पे बहुत सारे नाड़ी से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, वहां पे एक नाड़ी है, और वो नाड़ी क्या करती है, नाड़ीज क्या करती है, वहां पे उस प्राण के जो एक ऐसे रेगुलेटर काम करती है, फ्लो को चैनलाइज करती है। नाउ इन द योगिक लिटरेचर और योगी फिजियोलॉजी में क्या है कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, दैट इज मेड बाय द 5 डिफरेंट लेयर्स और 5 डिफरेंट फ्रेम्स और 5 डिफरेंट डायमेंशन ऑफ आवर पर्सनालिटी की बात करते हैं। लाइक अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एंड आनंदमय। अन्नमय मीन्स जो बॉडी हमारी अनाज से बनती है, व्हाट वी ईट, उससे जो हमारी बॉडी जो बिल्डअप होती है, जहाँ हम बात करते हैं DNA, सेल, टिश्यूज, नर्व, ऑर्गन, बॉडी सिस्टम्स की बात करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आवर फिजिकल बॉडी, अन्नमय, अनाज से बनी हुई बॉडी। देन प्राणमय बॉडी। प्राणमय बॉडी जो है वो नेक्स्ट लेवल ऑफ बॉडी है, वो जहाँ पे हम ऑरे की बात करते हैं, बॉडी के मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, बायोमैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, नाड़ी और चक्रास की बात करते हैं। इट मीन्स जो आपका अन्नमय बॉडी है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट डायमेंशन है प्राणमय बॉडी, दिस इज योर फिजिकल बॉडी, दिस इज योर प्राणिक बॉडी। ये इसके साथ पैरेलल ही है, या इसके ऐसे कह सकती है पैरेलल है। इस बॉडी के ऊपर, प्राणमय बॉडी के ऊपर
आपकी नाड़ी और चक्रास और प्राण का वर्क होता है। आपकी फिजिकल बॉडी पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, आपकी किसका, प्राणायाम का इम्पैक्ट पड़ता है आपकी प्राणिक बॉडी पे। देन हम बात करेंगे मनोमय और विज्ञान में और आनंद में, इसकी हम बात अभी बाद में करेंगे। अभी मेनली हमारा फोकस है वो प्राणमय बॉडी पे। इट मीन्स जो प्राणायाम है वो इम्पैक्ट डालता है आपकी प्राणिक बॉडी पे। अब ये प्राणिक बॉडी क्या है? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर द सिंपल अंडरस्टैंडिंग वी कैन से प्राणिक बॉडी हमारी जो फिजिकल बॉडी, जो अन्नमय बॉडी है, इसका सॉफ्टवेयर है। मतलब ये हमारी फिजिकल बॉडी है, ये हमारी फिजिकल बॉडी, इसका जो सॉफ्टवेयर है दैट इज आवर प्राणिक बॉडी, या हम उसे कहते हैं प्राणमय कोशा। अब सिंपल सा एग्जांपल, अगर ये मेरे पास एक लैपटॉप है या मोबाइल है, अगर उसका सॉफ्टवेयर अप टू डेट है तो सिस्टम का जो हार्डवेयर है वो अच्छे से काम करेगा। और हार्डवेयर सब कुछ सही होते हुए भी अगर उसका जो सॉफ्टवेयर है वो उसका सपोर्ट नहीं कर रहा, सही से काम नहीं कर रहा, देन व्हाट हैपन, वो हार्डवेयर सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो दैट इज व्हाई व्हेन वी परफॉर्म प्राणायाम वी अपडेट आवर सॉफ्टवेयर, हम अपने सॉफ्टवेयर को अच्छे से काम कराते हैं और उसके कारण हमारा हार्डवेयर अच्छे से काम करता है। सो दैट इज व्हाई इन द योगा इट इज मेंशन दैट कि अगर आपका जो प्राण है वो डिस्टर्ब्ड होता है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो आउटपुट है, दैट इज कम्स ऑन योर फिजिकल बॉडी पे अपीयर होगा इन द फॉर्म ऑफ डिजीज और हेल्थ इश्यूज। नाउ जो प्राण है वो हमारी बॉडी में फर्दर डिवाइड है पंच प्राण में, फिर उसके बाद भी डिवाइड है। तो जो पंच प्राण और है हमारे, वो प्राण, अपान, समान, उद्यान और व्यान है। ये हमारे डिफरेंट बॉडीज को गवर्न करते हैं। जैसे हम बात करेंगे अगर आप प्राण की, तो जो मेनली जो प्राण है वो हमारे नेक रीजन से लेके डायफ्राम रीजन तक, मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम इसको लीड करता है, इसे गवर्न करता है। सेम वे में हम अगर समान वायु की बात करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट डायफ्राम टू द नेवल रीजन और बेल्ट, तो इसके बीच में जितने ऑर्गन है उसे वो गवर्न करता है, लाइक आवर स्टमक मतलब डाइजेशन, देन आवर पेंक्रिया, liver function, kidneys function, that is governed by this. Then we talk about apan, it is all about the pelvic region के अंदर जितने organs हैं उनको वो control करता है। So in that way these different जो पंच प्राण हैं वो main जो प्राण है उसके supportives होते हैं। Now nadis and chakras. So I already told that nadi is a subtle path in which prana flows. अब कितनी नाड़ीज होती हैं? सो इन योगिक लिटरेचर रफली कहा गया है मोर देन 72,000 नाड़ीज। हमारी जो प्राणिक बॉडी है, फिजिकल बॉडी नहीं, प्राणिक बॉडी है, उसमें मोर देन 72,000 नाड़ीज है। और आउट ऑफ 72,000 नाड़ीज, दीज आर द थ्री मेन नाड़ीज: ईडा नाड़ी, मूल चैनल, पिंगला नाड़ी, सन चैनल, एंड सुषमा नाड़ी, दैट इज अ सेंट्रल चैनल ऑफ बॉडी। अब जो ईडा नाड़ी है उसका जो रिफ्लेक्शन फिजिकल बॉडी पे है, जिसको मॉडर्न साइंस से जोड़ा जाता है, दैट इज योर parasympathetic nervous system, means it is a part of our autonomic nervous system. पिंगला नाड़ी जो है, इसे सूर्य चैनल भी कहते हैं, that is reflect or present by our sympathetic nervous system. And सुषमा नाड़ी, that is all about the CNS, central nervous system, means spine or brain. अब जो हठयोग कहता है कि if you मतलब हठयोग का जो एमी है वो हर्ट को क्या करना है, मिला देना है। और दूसरे वे में कहते हैं कि जो टू अपोजिट एनर्जीज हैं, ईडा और पिंगला और मून और सन चैनल है, इनको बैलेंस करना। अगर हम ईडा और पिंगला को बैलेंस कर देंगे, देन व्हाट हैपन, हमारी सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाएगी, और सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाएगी, दैट इज द एम ऑफ हठ योगा। अब जो ये देखिए यहाँ पे डायग्राम, इसके अंदर थ्रू नाड़ी, इसके बाद हम चक्रास की बात करते हैं। जो चक्रास दिख रहे हैं आपको, मेनली चक्रास बहुत सारे, उसमें मेनली हम 7 चक्रास की बात करते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा एंड शस्त्रार्थ। ये डिफरेंट चक्रास हैं। जैसे मूलाधार, इट स्टार्टेड एट द what we can say the perineum part of our spine or the end part of the spine. अब जो ये मूलाधार है, यहाँ से लेके शस्त्रार्थ तक जो भी सारे चक्रास हैं, उनके चारों तरफ, ये दोनों तरफ जो हमारी ईडा और पिंगला है वो स्पाइरल की हुई है, क्रॉस इंटरसेक्ट करते हुए गई है। ईच चक्रास पे आप डायग्राम में दे सकते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए गई हैं। अब सिंपल सी बात है, योग कहता है कि अगर आपकी जो ईडा और पिंगला को बैलेंस करेंगे तो सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाएगी। सेम वे मॉडर्न साइंस कहता है, इफ यू मेक अ बैलेंस इन योर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इट मींस इफ यू मेक अ बैलेंस इन योर पैरासिम्पैथेटिक एंड
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो आपका जो ब्रेन और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड, स्पेशली आपका ब्रेन अपनी बेस्ट एफिशिएंसी से काम करेगा। नाउ चक्रास का जो एंडोक्राइन सिस्टम के क्या साथ क्या रिलेशनशिप है, मतलब उसका फिजिकल बॉडी के साथ क्या रिलेशनशिप है, सेम वे में जो मेनली लीडिंग हमारे एंडोक्राइन सिस्टम्स हैं या ग्लैंड सिस्टम, उसका जो रिप्रेजेंट है हम कर सकते हैं हमारे चक्रास से। जैसे मूलाधार का हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, देन एड्रिनल ग्लैंड को हम दूसरा जो है स्वादिष्टान से, मणिपुर से हम कर सकते हैं पंचक्रिया को, अनाहत से हम थायराइड थाइमस ग्लैंड की बात करते हैं, विशुद्धि थ्रोट चक्रा से हम थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं, आज्ञा चक्रा और थर्ड आईज से हम पिट्यूटरी ग्लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, और क्राउन चक्रा सहस्त्रार से हम पिनल ग्लैंड की बात करते हैं। सेम वे में जो हमारे एक और जो डायमेंशन है, दैट इज ऑल अबाउट द जो हमारे बंच ऑफ नर्व्स निकले हुए या नर्व रिफ्लेक्टर्स हैं, उनको भी हम चक्रास, जो डिफरेंट चक्रास है उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, सबसे जो बॉटम पे है इसे हम मूलाधार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मूलाधार हमारे पैलेट रीजन के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करते हुए दिखा रहा है, नर्व्स लिखी हुई है। देन यहाँ पे बंच ऑफ नर्व्स लिख ली हैं, वो गई हैं आपके सेकेंड लेवल के ऊपर। देन यहाँ पे देखिए स्टमक, अनाहत चक्रा, तो इसमें स्टमक के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जितने ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल कर रही है। जिन हर्ट चक्रास में आपके देखिए मेनली हर्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब लंग्स को गवर्न किया जा रहा है। So this is also one depiction or presentation of chakras on our physical body. Now bandhs and yogic lock. See, till now हमने breathing exercise की बात की थी। breathing exercise और प्राणायाम में जो सबसे core difference है, that is all about the bandhas. जो yogic bandhas की बात करते हैं, yogic locks की हम बात करते हैं। Now what is bandhas? जो bandhas है, that is a neuromuscular lock which we perform during asana and pranayama, and which having aim to channelize our prana in the right direction. मतलब बंद हम लगाते हैं, उसके थ्रू जो प्राण है उसको राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं। नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बंद, जो 4 प्रकार के बंद होते हैं हमारी बॉडी में, या हम परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग आसन और प्राणायाम के। फर्स्ट वन इज मूलाधार, दिस इज ऑल नोन एज रूट लॉक। जब हम पेरिनियम मसल्स को ऊपर की तरफ पुल करते हैं और होल्ड करते हैं, दैट इज आवर मूल बंद। Then उद्यान बंद means when we pull our navel region or stomach towards the spine little bit upward, that is our उद्यान बंद। Then जलंधर बंद is a chin lock. Chin lock मतलब हम जब अपने चिन को स्टर्नम से टच करने की कोशिश करते हैं और टच करते हैं, that is known as the chin lock. महाबंद means when we perform all these 3 bandhas together, means मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद को जब एक साथ perform करते हैं, that is known as the महाबंद. Now work of bandhas, I already told that it is channelized prana in the right direction. Now the physical benefit of bandhas का physical benefit क्या है? Simply when we go for example उद्यान बंद, हम जब उद्यान बंद perform करते हैं, हम stomach को pull करते हैं spine की तरफ और ऊपर से chin lock लगाते हैं, तो we create a negative air pressure in our abdominal and thoracic region और abdominal region या chest cavity और स्टमक या एब्डोमिनल कैविटी में एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन से उन्हें जेंटल मसाज मिलता है और उससे उनके अंदर माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, या कह सकते हैं माइक्रो कैपिलरीज हैं उनके चैनल्स ओपन हो जाते हैं, सो दैट्स इंप्रूव देयर एफिशिएंसी। सेम वे में हम व्हेन वी परफॉर्म मूलाधार, सो पैलेट रीजन में हमारे जितने ऑर्गन्स हैं उनके अंदर भी सेम इम्पैक्ट पड़ता है और उनकी जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो जाती है। एंड व्हेन वी परफॉर्म महाबंद में हम क्या करते हैं, एक साथ जब परफॉर्म करते हैं तो ये जो इम्पैक्ट है मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, इसका जो इम्पैक्ट है वो मल्टीपल हो जाता है, मतलब इम्पैक्ट एक साथ हाई एफिशिएंसी के साथ मिलता है। नाउ स्टेजेस ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम में हम 4 चीजों पे फोकस करते हैं। एक पूरक, वॉलंटरी इनहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन नहीं, वॉलंटरी इनहेलेशन के साथ करते हैं विद कंट्रोल। कुंभक, वॉलंटरी इंटरनल होल्ड। Then Rechak, voluntary exhalation, and outer kumbhak, it is voluntary external holding. हम ब्रीथ को बाहर होल्ड करते हैं, ब्रीथ को आउट करने के बाद होल्ड करते हैं। Preparation for pranayama, as we know, respiratory part should be clean. आपका respiratory part should be clean, so it may be performed Jalneti or Sutraneti.
lung capacity should be good. आपकी lung capacity अच्छी होनी चाहिए when we talk about the pranayama. So that is why I already told that first we perform breathing exercise, normally what we can say yogic breathing, and through that we prepare our this lungs capacity or respiratory muscles for the pranayama practice. Respiratory muscles should be healthy, proper position of the body, and the empty stomach and clean flow. Now variation of pranayama. See, जो वेरिएशन है प्राणायाम का, इसके अंदर दो थॉट ऑफ स्कूल्स है. एक कहते हैं कि टाइप ऑफ प्राणायाम की अगर हम बात करें, सो देयर आर 3 टाइप ऑफ प्राणायाम. प्राणायाम का जो आयाम, जो एक्सटेंशन, हम 3 ही तरीके से कर सकते हैं. रेचक, पूरक, कुंभक. या तो इनहेल करके, या तो होल्ड करके, या तो एक्सहेल करके. बट ये जो इसका जो वेरिएशन ऑफ प्राणायाम है, मतलब हम जो इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और होल्ड करते हैं, इसका जो अगर वेरिएशन देखें तो मेनली हम दिस 8 टाइप्स की बात करते हैं. इससे भी अधिक है, पर मेनली हम इस 8 टाइप्स ऑफ प्राणायाम बोलते हैं नॉर्मली हमें से. जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, उज्जयी, भस्त्रिका, शीतरी, शीतकारी, सूर्य भेदन, चंद्र भेदन, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी. ये वेरिएशन है प्राणायाम का. Precaution during practice of pranayam, movement should be gentle. आपको gently perform करना है. Do not use unnecessary muscles. Unnecessary muscles को involve नहीं करना है. Do not give strain to unnecessary body parts. Keep your position as per your capacity. Do not try to jump on extreme capacity. Go step by step and slowly. This is more important. You have to enjoy the practice. आपको practice को enjoy करना है, strain नहीं create करना है. And do daily practice. यहाँ पे एक और जो इसका कोर, मतलब जो भी प्रिकॉशंस है, इनका कोर ये है कि देखिए आप अपनी बॉडी के प्राणिक लेवल पे काम कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज ये एक धौरी तलवार है. इफ यू परफॉर्म प्राणायाम इन द राइट वे, यू गेट मिरेकल बेनिफिट्स. एट द सेम टाइम, if you not perform pranayama in the right way, it means if you perform pranayam practice in the wrong way, आपको उतने ही क्या कहते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आएगा. सो दैट इज व्हाई अगर आप प्राणायाम को जब भी सीखना है, किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में सीखिए, और परफॉर्म करना है तो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कीजिए. ये नहीं कि आपको नॉलेज भी है तो ये नहीं कि आप सीधे ए के बाद बी पे आइए. नहीं, ए देन बी देन सी एंड देन डी. तब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो कीजिए. अब इतने सारे प्राणायामों में इस प्रेजेंटेशन में वी टॉक अबाउट ओनली अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग भी कहते हैं. इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है. सिंपली हमें बैठना है, क्रॉस लेग, मतलब स्पाइन शुड बी स्ट्रेट. क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हैं, चेयर पे भी आप बैठ सकते हैं. एंड व्हाट यू हैव टू डू, टेक अ ब्रीथ थ्रू योर लेफ्ट नॉस्ट्रल. लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ इन करना है, राइट से ब्रीथ को एक्सहेल करना है. देन राइट नॉस्ट्रल से ब्रीथ को इन करना है, एंड देन लेफ्ट से exhale. That is a normal procedure of अनुलोम विलोम प्राणायाम. इसे फर्स्ट प्राणायाम भी कहा जाता है. और इस प्राणायाम का मेन जो कोर है, दैट इज क्रिएट बैलेंस बिटवीन ईडा एंड पिंगला नाड़ी. हमारी जो ईडा पिंगला नाड़ी है, या हमारी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना. और लिटरेचर कहता है कि इफ यू परफॉर्म दिस अनुलोम विलोम प्राणायाम फॉर नेक्स्ट 3 months, यू प्यूरिफाई योर नाड़ीज. हमारी जो नाड़ीज हैं प्यूरिफाई हो जाएगी, और कह सकते हैं हमारी ईडा पिंगला नाड़ी को हम प्यूरिफाई करके हम इससे बैलेंस कर देंगे. नाउ स्टेजेस ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम. अगर किसी को अनुलोम विलोम प्राणायाम लर्न करना है तो उसको ये डिफरेंट स्टेजेस को फॉलो करना पड़ेगा. सी, इन द फर्स्ट स्टेज आपको बैठ के सिंपली लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ को इन करना है और आउट करना है 5 to 10 times. देन सेम आपको राइट नॉस्ट्रल के साथ ब्रीथ को इन करना है और एक्सहेल करना है 5 to 10 times. सेकंड स्टेज में आपको ब्रीथ लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करना है एंड राइट से एक्सहेल. अगेन इनहेल करना है लेफ्ट नॉस्ट्रल से, राइट से एक्सहेल करना है. सेम प्रैक्टिस आपको राइट नॉस्ट्रल के साथ भी करना है. इन स्टेज थर्ड, यहाँ पे आपको लेफ्ट से ब्रीथ इन करनी है, राइट से एक्सहेल. Then after you have to take a breath to the right nostril and exhale to the left nostril. Up to this stage third, that is for the sedentary people. आम आदमी के लिए है, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसमें ज्यादा प्रिकॉशंस
ध्यान देने वाली चीज नहीं है। नाउ स्टेज 4, हियर वी टॉक अबाउट द कुंभक, और जहां हम कुंभक की बात करते हैं, जहां हम ब्रीथ रिटेंशन की बात करते हैं, वहां पे आपको फर्स्ट अपने जो मेडिकल स्टेटस है उसको चेक करना है, एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी है, देन यू हैव टू परफॉर्म, और एडवाइस के साथ साथ एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही परफॉर्म करना है। सो सिंपली व्हाट वी डू when we perform this stage 4 level of Pranayama pranayama, you take a breath to the left nostril, and then after we hold it, we talk about internal retention, then we exhale to the left nostril, and again take a breath to the right nostril, and then hold, and then exhale. This is stage 4. देन स्टेज 5, यहाँ पे हम इंटरनल और एक्सटर्नल रिटेंशन दोनों की बात करेंगे। अभी स्टेज 4 में हमने इंटरनल रिटेंशन की बात की थी, अब यहाँ पे एक्सटर्नल रिटेंशन को भी ऐड करेंगे। सो सिंपली टेक अ ब्रीथ टू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ को लिया, होल्ड किया, अंतरंग कुंभक की बात की मैंने यहाँ पे, इंटरनल रिटेंशन। देन लेफ्ट से ब्रीथ को आउट किया, फुल ब्रीथ आउट, एंड देन होल्ड, दिस इज एक्सटर्नल कुंभक। देन अगेन टेक अ ब्रीथ टू द थ्रू योर left nostril, then hold Antarak Kumbhak, and then exhale and hold. This is your Bahari Kumbhak. ये moderate level of Anulom Vilom Pranayama की practice है. Now this is the advanced level. Here we talk about the Kumbhak plus बंद. हम बंद भी लगाते हैं और कुंभक भी perform करते हैं. इसको कैसे perform करते हैं? Simply we take a breath first through left nostril, then we hold internal kumbhak, plus we perform 2 bandh, root lock and chin lock, मूल बंद और चलो okay, jalandhar band. Then now we breathe out through the left nostril, hold, breathe out, and then after we hold, external kumbhak. यहाँ पे हम external kumbhak के साथ तीनों बंद एक साथ perform कर रहे हैं, chin lock, abdominal lock and root lock. Again take a breath through your right nostril and again hold and perform 2 bandhs, chin lock and root lock, jalandhar bandh or mool bandh. Again breathe out through your left nostril, hold, breathe out, and then hold, then perform all 3 bandhas, or we can say mahabandh. So say simply होता क्या है कि when we take internal kumbhak, हम जब breathe को in करके hold करेंगे, that time we perform only 2 bandhas. Possibly हम 2 perform कर सकते हैं, आपका root और chin. And when we go for external retention, बाहरी कुंभक की बात करते हैं, at that time we perform all 3 bandhas together, or that is known as the mahabandha. अब बात करते हैं रेशियो की. For the beginners, it is 1:1:1. मतलब you have to take a breath for 1 minute, for 5 seconds. For example, for 5 seconds, you have to hold for 5 seconds, and then you exhale for next 5 seconds. After that, practice of 2 to 3 weeks, we go for the next level of ratio. That is, we take breathe for 5 seconds, then we hold for 10 seconds, and then exhale in 5 seconds. It means 1:2:1 ratio. And next level, that is where we go for 1:2 ratio. Means you take a breath for 5 seconds, hold for 10 seconds, and exhale for 10 seconds. And at the last, that is 1:4:2. Means you take a breath for 5 seconds, hold for 20 seconds, and then exhale for 10 seconds. अब यहाँ पे चीज जो मेंशन करना चाहता हूँ कि भाई अगर हम 5 सेकंड के ब्रीथ को इन कर रहे हैं तो 10 सेकंड में ब्रीथ कहाँ से निकाल रहे हैं? नॉर्मली हमारी ये अंडरस्टैंडिंग होती है. सिंपली देखिए, यहाँ पे अमाउंट ऑफ ब्रीथ, आपने 5 सेकंड में जो ब्रीथ को लिया, उतने ही ब्रीथ को आपको नेक्स्ट 10 सेकंड्स में निकालना है, एक्सहेल करना है विथ कंट्रोल. सो दैट इज द मींस यहीं पे आपकी विल पावर और प्रैक्टिस का जो रोल अदा होता है कि आपको अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल, वॉलंटरीली एक्सहेल करना है, वॉलंटरी इनहेल करना है, वॉलंटरी होल्ड करना है और एक्सहेल करना है. और एट द जो कोर ऑफ प्राणायाम प्रैक्टिस है कि आपको प्रैक्टिस को एंजॉय करना है, आपको स्ट्रेन नहीं क्रिएट करना. अगर आप स्ट्रेन क्रिएट करेंगे तो इट में भी आपको नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है बॉडी के ऊपर. सो इन द लास्ट कंक्लूजन, देखिए स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स इज और आर पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. जो स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, ये हमारी डेली लाइफ में रहेंगे ही.
अगर हम स्पेसिफिक आज की टॉक की बात करते हैं प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, तो हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस में जो काम डाउन प्रैक्टिस की बात की थी उसको हम 10 से 15 मिनट परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम नॉर्मली हमारा जो एक्सलेशन पार्ट है इनहेलेशन से ज़्यादा होगा, जिससे हमारी बॉडी का हार्ट रेट डाउन होगा और हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मैसेज मिलेगा कि एवरीथिंग इज ओके और हमारी बॉडी की इंटरनल फिजियोलॉजी बैलेंस हो जाएगी। लॉन्ग डीप प्रैक्टिस जो है, लॉन्ग योगिक प्रैक्टिस की बात करिए या डीप प्रैक्टिस की बात करें, इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, इवन कभी भी कहीं पे भी, बस जस्ट आफ्टर मील जो है खाना खाने के बाद, उसको नहीं परफॉर्म करना है। अल्टरनेट ब्रीदिंग प्रैक्टिस और अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं ट्वाइस ए टाइम इन ए डे, मॉर्निंग और इवनिंग 10 to 15 मिनट्स के लिए। सो राइट ब्रीदिंग लीड्स राइट हेल्थ। सो अवेयर एंड वॉच योर ब्रीदिंग, अपनी ब्रीदिंग को अवेयर कीजिए, वॉच कीजिए कि किस तरह की ब्रीदिंग मैं ले रहा हूँ, बिकॉज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। जो बाहरी दुनिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट आवर इनर इन्वायरमेंट इज इन आवर कंट्रोल। हमारे जो इनर इन्वायरमेंट है वो हमारे कंट्रोल में है थ्रू आवर ब्रीदिंग। सो दिस इज अ पावर ऑफ आवर ब्रीदिंग। So these are the reference. So in the last, once again, I put my sincere thanks to the UGC HRDC Gujarat University for providing me such a wonderful platform where I exchange or share my thoughts and ideas on this topics. So in the last, thank you everyone.